Okay, beta. So today we'll be discussing this return and risk thing. So I'll start with an example. Suppose you have this situation. So we are looking at how to compute risk and return. So suppose I have this situation that A naught is 100. This is the price of the bond at time 0, and A1 is 110. So you can take any. I'm taking in dollars, but मैं लिख नहीं रही हूँ कुछ भी. S naught is my 100 and S1 is 125. Sorry, beta. Just a minute. S naught is 80 and S1 is 100 with the probability 0.8. बेटा दरवाजा बंद करके आओ प्लीज. And 60 with the probability 0.2. Okay, and suppose I have my portfolio which is having 50 shares and 60 bonds. Okay, beta. So this is the situation, and I want to compute that how much is the return and how much is the risk. ठीक है? So obviously return sure नहीं है, risk भी sure नहीं है. Why? Because S1 is not sure. S1 random है. So इसमें risk और return sure नहीं है, but still we want to have a number. Okay? So how you will compute the return? So return हमें पता है already. KV is V1 minus V0 upon V0, right? So you can compute this thing. Everybody is comfortable. V1 is the value of the portfolio at time 1. So I'm just writing. So this is what you will get. This is equal to 0.16 with probability 0.8, and this is equal to minus 0.04 with probability 0.2. Okay, beta? So you can just do this computation. So return we say is equal to expected value of KV. Expected value सबको निकालनी आती है. When you are given a random variable, you compute the expected value. So that is equal to here, that will be 0.16 into 0.8 minus 0.04 into 0.2. So this is equal to 0.12. So which is equivalent to 12%. Okay, so what we are saying here is, if you have this portfolio where you have 50 shares and 60 bonds, so मेरा initial जो value of the portfolio है, that is equivalent to 10,000. 10,000 हो गया ना. 50 shares है मतलब 50 into 80, that is 4,000. 60 bonds है मतलब 60 into 100, 6,000. 6,000 plus 4,000 is 10,000. तो इनिशियली मेरे पास अगर 10,000 अमाउंट है और मैंने ऐसे अपना बाइफरकेट किया हुआ है कि 50 शेयर्स लिए और 60 बॉन्ड्स लिए, तो 12% विल बी माय रिटर्न. एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट श्योर. ठीक है, श्योर नहीं है इसलिए हम रिस्क कंप्यूट कर रहे हैं, है ना. सो रिस्क विल बी deviation from this number. Whenever you have a random variable, उसका mean हमने ले लिया, that is your return, expected return actually, and deviation from this number will be your risk. So deviation को कैसे measure करते हैं? As a standard deviation. 0.012 is equal to 12% return. हाँ, जैसे हम FD में 5% होता है ना, FD में interest 5% है, that is return basically. तो ये 12% आपका रिटर्न है. Got it? ठीक है. So इसमें जो आपका डेविएशन आप निकालोगे, रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बेटा बताइए. जो भी वैल्यू है 0.16 माइनस द मीन दैट इज 0.12 स्क्वायर इनटू द प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.8 प्लस माइनस 0.04 माइनस 0.12 स्क्वायर इनटू 0.2. So this is equivalent to 0.08. So 8% is your risk. So ये वाला पोर्टफोलियो जो है उसमें रिस्क फैक्टर इतना है और रिटर्न फैक्टर इतना है. Do you understand what is happening? Now do the same thing if I have this portfolio.
सो बेसिकली आपने पूरे कोर्स में क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द पोर्टफोलियोज कि कौन सा अच्छा है, तो विच पोर्टफोलियो इज गुड, जिसमें रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम है, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इन द सेम सिचुएशन 0,100 दिस इज माय पोर्टफोलियो, व्हाट विल बी रिस्क एंड व्हाट विल बी रिटर्न, क्विक कैलकुलेशन जल्दी बताओ। 50-60 में तो हमने कंप्यूट कर लिया 12% रिटर्न और 8% रिस्क, इसमें करो 0-100 में फटाफट, करने की जरूरत है नहीं वैसे, है हाँ, तो इसमें देयर इज नो रिस्क, जीरो रिस्क, क्योंकि आपने सारे बॉन्ड्स खरीदे ना, और कितने परसेंट रिटर्न, बॉन्ड्स खरीदे, बॉन्ड पे यू कैन क्लियरली सी 100 रुपए का बॉन्ड 110 रुपए का हो रहा है, सो 10% इज रिटर्न एंड 0 इज द रिस्क। इस केस में आपके पास रिटर्न जो है वो 10% है और रिस्क जो है वो 0 है ऑब्वियसली, व्हाट इट, देखो ना बेटा, ये देखो 100 रुपए का बॉन्ड जो है वो 110 रुपए में हो जा रहा है ना, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वो बाद में टर्म्स आएंगी, कुछ टर्म्स रहती है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल डिस्कस लेटर, बट अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि डिपेंड्स ऑन, अभी धीरे धीरे से कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई जितना रिस्क, सब लोगों ने अपना रिस्क का एक लगाया होता है, किसने ज्यादा रिस्क वाले लेगा, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वी विल चूज द पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ, बट there are terms return risk to reward terms, ठीक है, we'll discuss later on, ठीक है, most probably in the lab we will discuss those terms, ठीक है बेटा। Okay, so tell me this one. You have this 125,0 इस पोर्टफोलियो में बताइए बेटा फटाफट, रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, हाँ हमारी टाइम पड़ती है ना, चलिए ये बताओ आप लोगों का लैपटॉप है, मैटलैब इंस्टॉल, तो लैब यहाँ पे हमारी सही है, हम यहाँ पे 20% हम कल तो ठीक है, तो ठीक है, ऐसे क्या है कि लेवल करना तो उनका प्लान है, ठीक है, इसलिए बट वो तो मैं आपके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये जो ऑनलाइन है ना, एक लैपटॉप कभी भी कर, ठीक है, तो विल स्टार्ट ऑन थर्सडे, बट सब लोग अपना लैपटॉप ऑन विद मैटलैब इंस्टॉल एंड मेक श्योर फाइनेंशियल टूलबॉक्स है, ठीक है, कैसे मेक श्योर करें, क्या जब अगर मैटलैब नहीं है तो इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपको मैं फंक्शन बता देती हूँ, आप उसमें वेरीफाई करना है, वो फंक्शन अगर होगा DATE exists डालने के लिए, मतलब if you type exists on the command window और फंक्शन का नाम, ठीक है, और exists या टूल बॉक्स में डालो, क्या exists हमने CF में डाला होगा, वैसे ही डालना टूल बॉक्स में, आप डाउनलोड नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेंगे तो कुछ दिन कर, ओके बेटा फटाफट बताइए मुझे इसका रिस्क और रिटर्न, जल्दी बताओ फॉर दिस पोर्टफोलियो, इसमें आपने सारा पैसा अपना स्टॉक्स में लगाया, शेयर्स में खरीद लिया और बॉन्ड्स में कुछ नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट कि रिस्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और रिटर्न भी ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली तभी हम ज्यादा रिस्क लेंगे क्योंकि रिटर्न ज्यादा आ रहा है। करो बेटा फटाफट कैलकुलेशंस, probability 0.8 or 0.2, 0.8 for going up and 0.2 for going down, हाँ, return is 15%, yes, good,
100, S0 80, A0 is 100, S0 is 80 बेटा. ये आ रहा ना आपका पोर्टफोलियो, अप के लिए ये, डाउन के लिए ये, राइट. और वी नॉट आपका वही है 2%, 20%. 2% थोड़ी होगा बेटा. अगर इतनी है ना, इतनी ज्यादा रिटर्न है 15%, तो रिस्क तो बढ़ेगा ही ना. ओके, कैलकुलेशन कर लेना. नाउ यू सी, इसमें 12% और 8%, रिटर्न 12% है, रिस्क 8% है. अगर आपने रिस्क बहुत कम करना है तो आपको रिटर्न भी कम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. एंड इफ यू हैव हाई रिस्क देन ऑब्वियसली रिटर्न विल बी ऑल्सो हाई, है ना. सो वी एक्सपेक्ट कि वेर एवर वी आर टेकिंग मोर रिस्क, तो चांसेस आर देयर कि विल गेन मच, बट एट द सेम टाइम देर आर चांसेस कि यू विल लूज सो मच. ओके, सो दैट अकॉर्डिंगली यही सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे an investor will make a choice कि मैंने कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस, राइट. ओके बेटा, सो we'll move on to the next thing now. So देखिए अभी तक हमने क्या क्या किया है. We have discussed very little bit about bonds and stocks. अभी तक हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ बॉन्ड एंड स्टॉक्स है. एंड दिस अगेन आई से टिल नाउ वी आर जस्ट डूइंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स. ये सारी चीजें हम डिटेल्स में करेंगे. हर चैप्टर की अपनी डिटेल है. बॉन्ड्स विल स्टडी इन डिटेल्स कि बॉन्ड्स कैसे होते हैं. Then we will study stocks in details, right? So the next thing which we are going to add in our portfolio is called forward. Forwards पता है किसी को? What are forwards? So the next thing we are making an addition to our portfolio. Okay, so now the next thing is we add a new, क्या बोले उसको, सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज बोलते हैं इनको. सो हमारे पास अभी तक बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स हैं. सो वी एड अ न्यू सिक्योरिटी कॉल्ड फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स इन आवर पोर्टफोलियो. सो दे आर सेम एज, जैसे स्टॉक्स होते हैं वैसे ही दे आर ऑल्सो ट्रेडेड ऑन. जैसे अगर आप जीरोधा यूज कर रहे हो तो यू कैन सी वहां पे फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं. सो फॉरवर्ड्स नहीं होते, फ्यूचर्स होते हैं. सो फॉरवर्ड्स आर, दे आर सेम, इनका सारा एनालिसिस इज सेम एक्सेप्ट फॉरवर्ड्स दे आर ऑन ओटीसी. ओटीसी मैंने बताया था ना. और दीज आर ऑन एक्सचेंज. ठीक है, तो ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर. मतलब ये वाले जो फॉरवर्ड्स हैं ये जो है वो पर्सनली हम आपस में वो करते हैं. और अगर आप जीरोधा पे देखोगे तो यू विल सी फ्यूचर्स बट एनालिसिस इज सेम. ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स यू शुड नो इज forwards are, they are traded on, they are OTC basically, over the counter market, and futures are actually traded on exchange traded markets, right? So what is the future? So let us see what is the future. और मैं एक टर्म यूज करूंगी क्योंकि बुक में फॉरवर्ड की हुई है, तो लेट मी यूज फॉरवर्ड. बट यू रिमेंबर कि एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस डिफरेंस, देयर इज नो अदर डिफरेंस. सो फॉरवर्ड क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात तो ये होता क्यों है. सपोज देयर इज अ सीरियल मेकर एंड देयर इज अ फार्मर. ठीक है, फार्मर ने वीट को बेचना है और सीरियल मेकर ने वीट खरीदना है. ठीक है, तो फार्मर को ये है कि बाय चांस लोगों ने एकदम से, मान लो देयर इज सम न्यूज की सीरियल्स नहीं खाने चाहिए हमें, ये जो मान लो जो हम खरीदते हैं मूसली वगैरह. ठीक है, तो फार्मर को एक ये है, डर है कि हो सकता है प्राइस मेरे वीट का बहुत कम हो जाए, उससे सीरियल मेकर वीट खरीदता है. और सीरियल मेकर को ये डर है कि मान लो देर इज सम, जैसे फार्मर्स का अभी चल रहा है एजुकेशन की, उसकी वजह से मान लो अगर सप्लाई कम होगी वीट की तो सप्लाई का वीट का प्राइस हाई हो जाएगा.
तो फार्मर हैज रिस्क कि मेरा प्राइस कम हो सकता है और दिस सीरियल मेकर हैज रिस्क की प्राइस बढ़ सकती है। ओके, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि एक साल बाद सीरियल मेकर उस फार्मर से इतनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट इतने प्राइस में खरीदेगा। Okay, so what is a forward? Forward is an agreement between two parties to buy a risky asset at certain date in future. Okay, this date is called delivery date at a fixed point price. ये प्राइस आज ही फिक्स हो जाएगा, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उस दिन ये प्राइस फिक्स हो जाएगा. सो दिस डेट इज कॉल्ड डिलीवरी डेट and this is called forward price. नहीं बेटा दिखाओ. ओके बेटा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये फॉरवर्ड सुना आपने या ये रिस्क निकाला? फॉरवर्ड समझ आ गया ये कि दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय अ रिस्क. ऑब्वियसली एसेट शुड बी रिस्की, है ना, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. अगर रिस्की नहीं है वो, उसका पता ही हमें तो कोई पॉइंट नहीं है. एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर फॉर डिलीवरी डेट at a fixed point and that fixed point is called forward price. Okay बेटा. So एक party, the party who will buy the asset, the party who buys the asset is said to have long forward position. ना वो तो आपको पता ही चल गया कि जो खरीद रही है वो लॉन्ग है. द पार्टी हु सेल्स द एसेट is said to be in short forward position. Okay, for example, in this case, the farmer will be in short forward position and the wheat maker, cereal maker will be in the long forward position. Is that okay? So, जिसने बेचना है asset को, that is short, and जिसने खरीदना है, that will be long. Okay, suppose your risky asset, अभी तक हम stock को ही कह रहे हैं. So, forward price is say F. Okay, so what will be the, इसमें ये जो है दिस इज एन ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन है. नोट दिस थिंग दैट फॉरवर्ड्स आर ऑब्लिगेशंस. कि ऐसा नहीं है कि उस दिन डिलीवरी वाले दिन एक बंदा कहते कि मुझे नहीं खरीदना या दूसरा कहते मुझे नहीं बेचना. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो अगर ये ऐसा होता है तो लीगली दे विल टेक केयर ऑफ ईच अदर. अगर किसी ने कोई बंदा डिफॉल्ट करता है सो देयर इज अ लीगल एक्शन. So if you are entering into a forward contract, so if you are defaulting, there will be legal action. ठीक है, तो क्योंकि फॉरवर्ड के केस में ओटीसी है तो लीगल एक्शन होगा और फ्यूचर के केस में एक्सचेंज विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ. उसमें तो बंदा करता ही है क्योंकि उन्होंने पहले दे मेक श्योर कि इतना बंदे के अकाउंट में मनी है सो दैट दे कैन फॉरवर्ड. ओके बेटा, इज दिस क्लियर? फॉरवर्ड इज क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं नहीं, ऑप्शन आर अलग. ठीक है, सो बी, तभी मैं स्लो जा रही हूँ बेटा. अभी मैं फॉरवर्ड से आ रही हूँ, इसके नेक्स्ट ऑप्शन हम बनाएंगे. Huge difference is there. And obligation है, and at the time of making the contract there is no premium paid. सिर्फ एक contract sign करता है, होता है ना farmer serial maker कुछ देगा ना serial maker farmer कुछ देगा. So you can note down कि obligation है and no premium is paid. So this is just to save yourself from a possible रिस्क. दैट्स इट. ठीक है, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है, कोई आप फार्मर उसको पैसा नहीं देगा और सीरियल मेकर उसको पैसा नहीं देगा. ठीक है, नहीं दिख रहा? यहाँ पे कुछ दिक्कत है, गलती ऐसे चल जाएगा काम के नहीं.
ओके सो टेल मी, सो जो लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन है जिसकी, मान लो आपका अगेन वी विल टेक एस नॉट इज आर एसेट, सो लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन है उसका कितना पे ऑफ होगा एट टाइम 1, इस बंदे को फायदा होगा कि नुकसान होगा, अगर फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, नुकसान होगा बताइए। इसने कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में खरीद दिया, ठीक है, सो लॉन्ग फॉरवर्ड जिसके पास पोजीशन है उसको टी इक्वल टू 1 पे फायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है, फायदा भी हो सकता है नुकसान हो सकता है। फायदा कब होगा जब प्राइसेस मिल जाएंगे, जब S1 इज मोर देन F, सो हमारा जो रिस्की एसेट है दैट इज S, तो S1 इज द प्राइस, सो व्हेन S1 इज मोर देन F तब इसको फायदा होगा कि नुकसान, फायदा होगा, एंड व्हेन S1 इज लेस देन F इसको नुकसान होगा, उसका वाइस वर्सा इज फॉर दिस, राइट, सो विल से दैट पे ऑफ of a long forward contract is S1 minus F, ना, कितना पे ऑफ होगा इसको, ये नेगेटिव हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं, so we will say in our portfolio we will add now forwards also, X, Y, we will add Z, Z is your S1 minus F, S1 minus F, S1 is the price of the risky asset at time 1 minus F, और अब आपको पोर्टफोलियो में ये आपके शेयर्स हो गए, ये बॉन्ड्स हो गए, और ये आपके फॉरवर्ड्स हो गए, ठीक है। सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज वी नॉट, जल्दी जल्दी बताइए, वी नॉट क्या होगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है एक्स वाई जेड, x into s not plus y into a not plus z का कुछ है ना, क्योंकि फ्यूचर का कोई जीरो कांस्टेंट नहीं है, फ्यूचर में आपका नो प्रीमियम इज पेड, इसका मतलब जीरो के उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, सो वी नॉट इज योर x into s0 plus y into a0 and your v1 will be x into s1 plus y into a1 plus z into s1 minus f, ओके, अब इसमें ऑटोमेटिकली चला गया, अगर z नेगेटिव हुआ मतलब शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन है ना, z पॉजिटिव मतलब लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन, तो जब z नेगेटिव होगा शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन में, ये ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा, हम जो f है उसको ना हम स्टॉक प्राइस में से माइनस करें, वो अलग प्राइस में नहीं चलेगी जो हमारी सिंगल बीट होता है, वो तो मैंने एग्जांपल दिए बेटा, बीट की तो मैंने एग्जांपल दी है, बट हमारे पोर्टफोलियो में तो इसकी एक्टिविटी एक ही है ना, स्टॉक, ठीक है बेटा, तो ये जो बहुत सिंपल पोर्टफोलियो है, इसमें मैंने x सिर्फ एक तरह का स्टॉक लिया है, तो ये जो मैंने एग्जांपल दी थी वो कमोडिटी की थी, कमोडिटी हो सकती है, ठीक है, बट अभी हमने अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी है, ठीक है, और सो फॉर आवर पोर्टफोलियो S1 is risky, that's it. Okay, so any question which comes to your mind? नहीं, इसका मतलब आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, क्या बेटा, हाँ, क्योंकि हमारे केस में बेटा रिस्की, आपका आपके पास सिर्फ यही मार्केट है, इसमें रिस्की कौन है, यही वाला स्टॉक है, तो हमारे लिए इसका नहीं है रिस्की, बट ऑब्वियसली अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन को इंक्लूड करना चाहते हो तो दिस पोर्टफोलियो इज वेरी बिग, so for us क्योंकि रिस्की जो है वो स्टॉक ही है, तो we are talking about stock, so that is why this is S1, is this clear? इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आना चाहिए कि F कैसे डिसाइड करोगे, so how to decide this F, randomly थोड़ी F डिसाइड होगा, बॉन्ड का नाम ऐसे है वैसे सिलेक्ट होगा, मतलब F जो है उसके लिए there should be some rules, जो अभी मैंने क्या बताया, नो आर्बिट्रेरी प्रिंसिपल, कि मार्केट में कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप रिस्क फ्री पैसा बना सको, so based on the basis of that F can be decided, so I'll tell you, so the next question is how to decide F,
विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री तो बना सके कि आपका इनिशियल पैसा कोई भी नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो है, फिर भी मैंने शाम को प्रॉफिट और रिस्क फ्री, दैट इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिर तो अलाउड है, ठीक है। तो वी नॉट इज जीरो, वी नॉट मतलब इनिशियल आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, देन इट इज नॉट। जो जैसे यहाँ पे S1 था एंड हमारा जो वो था कि हमने फॉरवर्ड में से देखते ना पे ऑफ देखते थे, हां जी, पे ऑफ में भी S1 यूज करते हैं। मैम जो रियल स्टेज होंगे उसमें S1 और ये अलग-अलग होंगे ना पे ऑफ। नहीं बेटा, एक देखो, मान लो रियल सिचुएशन में आपके पोर्टफोलियो में वीट भी है, दैट इज वन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तब मेरे पोर्टफोलियो में दिखेगा x, y, z1, z2, where z1 is wheat, ठीक है, z2 is forward on wheat, समझिए बेटा। फिर आप यहाँ पे S1 की जगह क्या यूज करोगे, कोई नई चीज जो भी नहीं है, जो wheat अभी मेरा, अभी मैं क्या कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि ये मेरा रिस्की एसेट है, ये मेरा रिस्की एसेट है, और दिस इज अ फॉरवर्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस रिस्की एसेट। फॉरवर्ड जो है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन सम रिस्की एसेट। हमारे केस में दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दिस रिस्की एसेट व्हिच इज योर शेयर। शेयर्स में फिर फॉरवर्ड चलते हैं, हां, ठीक है। हर चीज एनी रिस्की एसेट विल हैव अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, ठीक है। So I gave this example of commodity, but shares में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइक जैसे टेंडर जो आप ये बेसिकली टेंडर जो टेंडर करते हैं कोई दुकान समझ में क्या फॉरवर्ड फॉरवर्ड को टेंडर से तो नहीं है, ऑब्वियसली टेंडर तो ये है कि किसी कंपनी ने कहा कि मेरे पास एक शॉप है रेंट पे, so we are just saying कि we are interested, so it is not analogous to this obviously, okay। so this is just a kind of अगर आप इसकी एनालॉजी देखो, कोई भी जैसे हम आपस में भी कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी जो दो लोग जिसने हमने कोई पैसा नहीं दिया मुझे, ठीक है, कि इतने टाइम बाद मैं इतना ये वाली चीज तुझसे इतने पैसे में खरीदूंगा, ठीक है, और वो कहेगा कि मैं बेचूंगा, चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, तो यू हैव एट जैसे प्रॉपर्टी लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टी लेते हैं, बट उसमें ना एक्चुअली प्रॉपर्टी में ये होता है कि देयर आर रूल्स कि अगर आपने बयाना लेते हैं, ठीक है, बेसिकली दैट इज कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, क्योंकि एक्चुअली उसमें अदरवाइज कोई कॉस्ट फॉलो ये जो बयाना है वो प्रॉपर्टी कोर्स में एडजस्ट हो जाता है, राइट, दैट इज काइंड ऑफ दिस, ठीक है। बट उसमें आजकल रूल्स आ गए हैं कि आप डबल वापस करोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इसमें ये है कि लीगली टैक्स मिल जाएगा कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो क्या आपका वो, ठीक है, समझिए मैडम फॉरवर्ड। Okay beta, so next question is how do we find F, forward price F, ठीक है बेटा। so this I will just tell you that it will be found on the basis of no arbitrage principle, ठीक है। so we have a chapter for forwards, उसमें हम actually इसको derive करेंगे, but here we will look at some examples। okay, so look at this example। suppose A naught is 100, A1 is 110, S naught is $50, okay, and we are saying then forward price must be 55, otherwise there will be an arbitrage opportunity,
otherwise there will be an arbitrage opportunity. बता रहे हो, ज्यादा होगा तो भी, कम होगा तो भी, ठीक है। तो आप लोग अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, so I'll just do this now. So what I am saying is कि मेरा फॉरवर्ड प्राइस 55 होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब आई वुड बी एबल टू मेक मनी विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो आई विल जस्ट प्रूव इट. सो सपोज एफ इज ग्रेटर देन 50. तो कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन अगर एफ 50 से बड़ा है, मैं पैसा बना लूं विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सोचिए फटाफट, यही चीजें हैं बस आपके पास. S1 भी दिया होगा, S1 नहीं दिया, S1 पे नहीं डिपेंड करता. ओके चलो, f अगर 50 से बड़ा है तो व्हाट आई विल डू, S नॉट का प्राइस 50 है ना बेटा, सॉरी 50 से नहीं 55 से, मैंने 55 प्रूव करना है ना इसको, सॉरी. सो व्हाट आई विल डू, बोरो $50, ये डॉलर्स में, एवरीथिंग इज इन डॉलर. मैंने $50 बोरो कर लिए एंड बाय अ शेयर. इस पैसे का मैंने शेयर खरीद लिया. अपना पैसा अभी तक मैंने कोई नहीं लगाया, मैंने 50 रुपए किसी से उधार लिए. t is equal to 0 पे, this is happening at t is equal to 0. I borrowed 50 rupees or dollars and I bought a share, and with this share I will enter into a short forward contract. t is equal to 0 पे I will enter into a short forward contract with f is equal to 55 and delivery time 1, time और date 1. Got it? ये तीन चीजें की है मैंने. $50 किसी से ले लिए, एक शेयर खरीद लिया, और क्योंकि मेरे पास एक शेयर है मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे टाइम 1 पे वही शेयर 55 में सेल करूंगा. दैट इज शॉर्ट फॉरवर्ड. समझ आ गया बेटा? ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज माय पोर्टफोलियो? यहाँ पे जरूरत नहीं है, जस्ट आई वांट टू नो कि आपको पोर्टफोलियो समझ में आ गया कि नहीं. पोर्टफोलियो क्या होगा? शेयर कितने हैं मेरे पास बेटा? एक शेयर है, एक शेयर खरीदा ना मैंने. और बॉन्ड्स कितने हैं? क्यों भाई 0 बॉन्ड क्यों है? ये मैंने खरीद $50 उधार नहीं लिए, ये बॉन्ड ही है ना, तो -½ बॉन्ड हो गया मेरे पास. $50 उधार लिए ना किसी से, इसका मतलब एक बॉन्ड रखना है, उधार लेना मतलब बॉन्ड्स, ठीक है. तो -½ और क्या है? शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन है. नहीं, मुझे सेल करना है ना, मैंने गलत लिख रखा है ना. मेरे पास शेयर है ना. नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर. ठीक है बेटा. सो दिस इज योर पोर्टफोलियो. समझ आ गया? क्या कह रहे हो आप बताओ. Z मैंने वही डिफाइन किया था ना, Z लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशंस, उसमें पोर्टफोलियो में. ठीक है, अगर इससे पहले जो मैंने लिखवाया आपको Z इंटू, मैंने ये नहीं लिखवाया आपको, S1 माइनस F लिखवाया ना मैंने. जो मैंने पे ऑफ लिखवाया वो S1 माइनस F लिखवाया है, वो मैंने लॉन्ग का लिखवाया है. तो यहाँ पे Z जो है वो पूरा लॉन्ग है. अगर आपने नहीं ये नोट करने की जरूरत नहीं, फिर आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर आपको पे ऑफ चेंज करना पड़ेगा. अगर आप इसको प्लस ले रहे हो वहां पे, तो पे ऑफ आपका F माइनस S1 है. देखो ना बेटा, ये वाला जो पे ऑफ है ये तब है जब आपके पास लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन. ठीक है बेटा, तो मैंने पे ऑफ फिक्स कर दिया. अकॉर्डिंगली आप नेट पॉजिटिव नेगेटिव लो, लॉन्ग के लिए पॉजिटिव, शॉर्ट के लिए नेगेटिव. ऐसा समझ? ठीक है. ओके, एनीवेज ये चीज तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि पोर्टफोलियो आपने देखना है, वो तो मैं ऐसे ही आपसे पूछ रही थी. चलो, आपने बोरो कर लिया $50, एक शेयर खरीद लिया, एंटर इनटू अ शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन विद F इज इक्वल टू 55 एंड टाइम 1. ठीक है, अब टाइम 1 पे देखो क्या होगा.
हाँ, टाइम 1 पे बताइए क्या होगा। हाँ, शॉर्ट फॉरवर्ड मतलब मैं उस बंदे को भेज दूंगी। टाइम 1 पे देखिए क्या होगा, क्या क्या चाहिए आपको। आपने एक बॉर्डर रखा है, 50 रुपए कितने वापस कर रहे हैं, 55 ना, 50 रुपए बॉर्डर रखा है, उस बंदे को 55 रिटर्न करोगे। और ये शेयर का क्या करोगे, इसको दे देंगे फॉरवर्ड जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस वो आपको कितने पैसे देगा, एफ, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यू विल गिव दैट शेयर टू दैट पर्सन एंड ही विल गिव यू 55 रुपीस एंड यू विल रिटर्न 55। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हो ये ना बेटा, ऊपर 100 का 110 रिटर्न करना है ना बेटा। आई एम सॉरी, अगर आपको ये देखो, ये बॉन्ड का मतलब क्या है कि 100 रुपए लोगे तो 110 वापस करना, 50 रुपए लोगे तो 55 वापस करना, ठीक है। और मैं गलत लिख रही थी नीचे, एफ 55 नहीं है, तो वो आपको एफ देगा बंदा, जब आपने उसको शेयर दे दिया तो वो ही विल गिव यू एफ मनी, 55 आपने रिटर्न कर दिए, आपके पास बच गया ना। So you made money F minus 55 without any initial investment. F money बनाई कैसे? चलो शुरू से पढ़ते हैं धीरे धीरे। You have a bond. ये मार्केट में जब भी आपको कहूंगी कि borrow करना है तो you will look at bond कि कितना rate of return है, कितना आपको उसको interest वापस है, ठीक है? So we have a risky asset जिसका initial price हमें दिया होगा 50। इस risky asset में हमें एक forward contract sign करना है and we want to know what should be forward price. Terms clear है तो ठीक है। So I am claiming कि forward price should be 55. Otherwise there is a arbitrage opportunity. Now what is arbitrage opportunity? कि without initial investment मैं पैसे बना दूँ, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? अब मैं assume कर रही हूँ, हाँ, अब I am assuming, अब मेरे को पता है कि f is 55, तो I will say कि f cannot be 55 से बड़ा and f cannot be 55 से छोटा। ये दो चीजें हमें रूल आउट कर देते हैं, obviously f is equal to 55, so I am assuming, suppose I am assuming that f is greater than 55। ओके, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि t is equal to 0 पे आप $50 borrow कर लो, उससे एक शेयर खरीद लो, $50 का शेयर, उससे एक शेयर खरीद लो और एंटर इनटू अ शॉर्ट फॉरवर्ड रिलेशनशिप। एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि t is equal to 1 पे मैं f में आपको भेजूंगा, क्योंकि f 55 से बड़ा है, तो t is equal to 1 पे देखिए क्या होगा। t is equal to 0 सिचुएशन है, t is equal to 1 पे क्या होगा, आपने जिससे $50 लिए हुए उसको आप कितने वापस करोगे, 55। और जब आप इन दोनों को अपना कॉन्ट्रैक्ट को वो करोगे, एग्जीक्यूट करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, एफ पैसे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं शेयर देना है, शेयर से आएगा शॉर्ट कॉम्पिटिशन, मतलब आप उस बंदे को शेयर दोगे वो आपको एफ अमाउंट ऑफ मनी देगा, चाहिए ठीक है ना, समझ आ रहा है, तो आपको एफ पैसा मिला और आपने 55 वापस कर दिया। So you are left with money at minus 55 because you are assuming f is greater than 55. So इसका मतलब कुछ मेरे पास initially 0 पैसा है और मैंने f minus 55 पैसा बनाया है। So this is an arbitrage opportunity. This is not allowed in the market. So इसलिए we will say this cannot be here. This is not possible. Therefore ये जो है rule out होगा कि f is greater than 55. Now we will rule out f is less than 55. Is that clear? So at t is equal to 1, you return $55. So let me write down, this is equal to 50 into 10%, क्योंकि 10% आपका बॉन्ड की रिटर्न है, प्लस 50। ओके, सो 55 आपने वापस कर दिया और गेट f by executing the contract. Therefore, you are left with f minus 55, which is positive. Okay, so this is an arbitrage opportunity.
कैन यू डू वन थिंग, सब लोग आज जाके गूगल पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की कुछ वीडियोस देख लोगे प्लीज, सो दैट, क्योंकि बार बार यूज होगा, ठीक है। सो जस्ट लुक, एक सिंपल सी वीडियो देख लेना किसी की भी, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस डू द अदर वे। नाउ नेक्स्ट एज्यूम, ये आप लोग बताओगे फटाफट मुझे, f इज लेस देन 55। अब बताओ क्या करें, f लेस देन 55 है, सो टेल मी एन आंसर कि मैंने जीरो कैसे लगाना है और मेरे पास कैसे बनना है। दैट इज आंसर। बनाओ, f लेस देन 55 है। शॉर्ट सेलिंग। हाँ, एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में तो 3-4 एग्जांपल्स की थी इसकी कि कैसे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, ठीक है। सो मे बी यू कैन जस्ट लुक एट द नोट्स और एक वीडियो देख लेना इसकी। बताओ बेटा फटाफट सोचो। हो गया क्लास है इस बार, कैन आई जस्ट कंप्लीट दिस फटाफट, हम शॉर्ट सेलिंग, टेक 1 मिनट। ये शायद इसलिए भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि आपका वो मिस हो गया है, हमने उस क्लास में करा था ना, तो दिस मे बी द केस। हाँ, सेल शॉर्ट लिखा है ना बेटा, सेल शॉर्ट ऑफ शेयर, ठीक है। जो मैंने पहले दिन को मैं सब डिटेल में बता रही थी पहले स्टार्ट करके, ठीक है। सेल शॉर्ट मतलब दिस इज अलाउड, आपको एक दिन का टाइम मिलेगा एंड या कोई करने की ऑब्वियसली रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक दिन बाद हो, बट ऑब्वियसली वी आर टेकिंग दिस assumption here कि जितना टाइम हमें यहाँ मिल रहा है उतना हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टाइम, ठीक है। तो सेल शॉर्ट मतलब विदाउट मनी यू कैन सेल शॉर्ट, ओके। MIS मैंने बताया था आपको, ठीक है। मार्जिनल इंट्राडे सेटलमेंट जो हमने फर्स्ट डे किया था। वैसे तो आर्बिट्राज तो हमारा सेकंड पॉइंट पे ही आ चुका है, कहाँ आ गया थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं हमें क्या। हाँ बेटा भी आर्बिट्राज अभी भी ये चीज चल रहा है। अब जब हमने इन्वेस्ट करते हैं ना $50 बॉन्ड्स में, हाँ? उसका रिटर्न तो हमें कहीं लाना है, 55 आएगा कहाँ पे ना, बस आ गया। हम आपसे पैसे तो आपने शेयर अपने पास शेयर वापस कर दे, शेयर का प्राइस कहाँ है आपको है। ये आप ये कह रहे हैं $50 तक इन्वेस्ट कर दिए, अब इसको हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो हमारे शेयर का प्राइस निकाल दिया। अब शेयर को पता ही नहीं है इस बार क्या होगा, है ना। शेयर तो होता है 60 हो जाए आपको लॉन्ग, अगर लॉन्ग, हाँ ठीक है। नाउ एंटर इनटू लॉन्ग, क्योंकि हमने शेयर वापस करना है ना, सेल शॉर्ट मतलब आपको आपको शेयर वापस करना है, तो आप इस एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करोगे जिससे आप शेयर खरीदोगे, दैट इज लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा फॉरवर्ड से कि आपको पता है कि मुझे बॉन्ड से जो है वो 55 मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन अकॉर्डिंगली सेट योर एफ, ठीक है। सो एंटर इनटू अ लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू हमें नहीं पता एफ, ठीक है। एफ हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि एफ इज लेस देन 55, ठीक है बेटा, क्लियर। अब टी इज इक्वल टू 0 पे ये है, टी इज इक्वल टू 1 पे देखिए क्या होगा, यू विल रिसीव कितना, कितना पैसा मिलेगा आपको 55, बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया 55 मिलेगा। आप लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आप क्या करोगे, पे एफ डॉलर्स एंड गेट अ शेयर, इस शेयर से स्क्वायर ऑफ योर शॉर्ट सेलिंग पोजीशन, ओके, स्क्वायर ऑफ द शॉर्ट सेलिंग पोजीशन, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया बताइए, 55 मिला, एफ दे दिया, ये डॉलर से ये जो आपका शेयर था उससे ये वाली स्क्वायर होगी, तो यू आर लेफ्ट विद 55 माइनस एफ व्हिच इज पॉजिटिव, है ना। यू आर अज्यूमिंग एफ इज लेस देन 55, so you are left with 55 minus f money which is positive, you are left with
55 minus f greater than 0. So this is an arbitrage opportunity. Not possible. Therefore, f is neither less than 55, neither greater than 55. So f is equal to 55. Okay, beta? So we will find out a formula also for f. ये तो एक एग्जांपल हमने किया था, ठीक है? सभी इंचेस में क्या है? सभी इंचेस में क्या है? ये जो आपका f कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, ये साथ बड़ी बहुत सिंपल फॉर्म रहता है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग फॉरवर्ड क्या होता है? लॉन्ग फॉरवर्ड क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इनके साथ कि कल ये मुझे शेयर देंगे, मैं इनको पैसे दूंगा दैट to that and in long forward contract and she is in short forward contract. जो बेचेगा that is in short forward contract, जो खरीदेगा that is in long forward. तो बेटा प्लीज सबको बोलिए क्लासेस में लगी रेगुलरली, अदरवाइज ये चीजें ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं एनालिसिस जब हम जो लैब वाला कोशिश करेंगे वो रिलेटिवली सिंपल रहेगा, बट इसमें आपको समझना पड़ेगा और ये चीज ऐसे अभी कोर्स कर रहे हो आप 3 लोग जब कभी फाइनेंशियल वैसे सीखोगे तो ये भी सीखोगे, ठीक है? तो दिस विल टेल यू द इंटरफेसेस के अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली एफ कैसे डिसाइड